Today we will learn about audit report. This session will be conducted by Ashish Moore. Hey guys, welcome. Today we'll talk about audit report. Are you excited? Let's see what's coming up. So first, we will start with why audit report. Yes, you should understand why it is required. Then we'll see what should be the format, whether there is any format prescribed. As we know, yes, there is a format prescribed. There are various kinds of modified opinions, or there are various kind of opinions, and we will learn today what are modified opinions. Then a different concept which is very important under audit report, like emphasis matter paragraph, other matter paragraph, and such kind of concepts. And last but not the least, the key audit matter. This is the very new concept introduced, and you might see certain audit reports which are having a key audit matter. Excited? Let's see now. Understand why audit report. You must be wondering, and many times we have these questions: why audit report is required? So yes, it is very important because it is the bread and butter of any CA. So the chartered accountant, if you hear anybody, so it's chartered accountant is associated with audit, and audit is associated with the audit report. Audit report is a deliverable which for the audit which we have done. That is one thing. And the second important thing is it really enhances the degree of confidence. Why we issue audit reports generally to the users of financials. So for statutory audit, we issue it for the shareholders. So by looking at the audit report, they understand that everything is going on fine in the company, or what are the issues. So it enhances the degree of confidence. Then it gives the view, true and fair view on the financial statements. Reports also talks about statutory and legal requirements, financial reporting framework. So first, overall audit report enhances the confidence, and what audit report talks about is one, whether financial are prepared as per the applicable reporting requirement, like accounting standards, auditing standards, then the statutory requirement which are Companies Act, various other acts, right? And so like standards of auditing, SS series 700 pertains to or talks about audit report. So whenever you want to see what is the requirement of audit report or any other matter, you have to go SS 700 series. Okay. What is the format? So yes, SA has prescribed a specific format for the audit report. SA 701 prescribes the audit report format. And whether you have to follow, yes, if you are want to comply with the standards of auditing and you want to issue audit report under the standard of auditing, then you need to follow this format. The format is very compulsory. You need to go to 70 format. So not only the format provided, and you need to follow that. So here is the format for you. So first you need to mention titles. So you might have, everybody has seen audit report. We might not have so seriously seen it, but yes, whenever you see any audit report, it will clearly states the title. Title is independent audit report, or what is, like if it is certificate, it will give certificate. So whatever. Then address it. Who is addressing? So to who has appointed us and to whom we are liable to report. So shareholders of the company, board of directors of the company, various. Then auditor's opinion. Now the new format. So if you see recently, in last 2 years, any audit reports, it will start with the opinion paragraph. Earlier the format was different, but now it is revised, and
The new format requires us to start with the auditor's opinion. So first paragraph, you need to state what you want to say, whether audit report is correct, wrong, any issues, or what is your reservation. So first, auditor's opinion. Then basis for opinion, then the paragraph going concern. So if there is some issues with the going concern, then you need to so this is only if applicable paragraph. Key audit matters, like we discussed, new paragraph, key audit matters, but it is only applicable to listed company. Keep in mind. Then responsibilities of financial statements. Yes, lot of time it is very important. Who is responsible for? So everybody knows management is responsible for financial statements. The stakeholder, those charged with governance are responsible. So this paragraph states the responsibilities of the financial statement. Who has, what are the responsibilities? This is. Then next paragraph comes auditor's responsibilities. So what is auditor's responsibility for the audit of financial statement? So these two paragraphs is very different and very important. Whenever you are issuing any audit report, very important is this paragraph, because this decides the scope of our work, scope of management's work. Okay, and then next comes to location of the description of auditor's responsibilities, then other reporting responsibilities paragraph, signature of the auditor, place of signature, and date of audit. People, please understand these all paragraphs are very important. You will find a detailed guidance note on these various guidance note. You can refer 701. It prescribes what should come, but in nutshell you should understand this is the format and this is the structure, this is the sequence of the audit report. Okay, let's slide, which is about form of opinion. So we discussed modified opinion. So opinion, so अपन ने देखा ऑडिटर्स रिपोर्ट में पहला पैराग्राफ क्या है. So once title and the addressee goes, the first paragraph comes to auditor's opinion. So opinion, कौन सा opinion है? So there are various forms of opinion. So first is unmodified opinion. Name suggests जो standard opinion है, standard opinion क्या है? सब अच्छा है, everything going fine. So there we say unmodified. Whenever everything is fine, then we issue unmodified opinion. So when we conclude that financial statements are prepared in all material respects in accordance with the financial reporting framework. So कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब ऑडिट अच्छा है, सब डिटेल्स मिल गए हैं, सब सही है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन. सो जो स्टैंडर्ड ऑफ ओपिनियन है वो अनमॉडिफाइड है. ठीक है. Then comes to modified opinion. This is very important, tricky, and there are different types of opinion in this. So first है unmodified opinion, second है modified opinion. Modified opinion means there is some issue. ठीक है. So क्या issue है उस हिसाब से हम opinions issue करेंगे. So first तो एक आपको information ही नहीं मिली, second है information मिली but आप conclude कर, आपका conclusion draw हुआ कि there is some issues in the checking you have done. It can be whole at a financial statement, it can be at a one revenue area में, accounts receivable area में, और सेकेंड इज आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली. सो इसके हिसाब से आपको वेरियस ओपिनियंस है. सो आपने काफी बार देखा होगा हम इशू जनरली हम बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन. आपको ये ध्यान में रखना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ ओपिनियन, वन इज अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड. मॉडिफाइड में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ओपिनियन. बेसिस आर comfort, basis are conclusion, these are issued. So first is qualified opinion, second is disclaimer of opinion, and third is adverse opinion. So आप देखोगे कलर मार्क के हिसाब से आप बोल सकते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन थोड़ा कम इम्पैक्टिंग है. क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है कि एक एरिया में आपको इश्यूज है. सो आप देखोगे वहाँ पे चार्ट है स्टैंडर्ड which says whether it is a material impact and whether it is a pervasive impact. जब मटेरियल है पर परवेजिव नहीं है, परवेजिव मीन्स पूरा फिनेंशियल्स पे इम्पैक्ट नहीं है, हर एरिया में इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन. आप बोलोगे रेवेन्यू इज नॉट करेक्ट, सो माय ओपिनियन इज क्लीन और माय ट्रू एंड फेयर ओपिनियन सब्जेक्ट टू, जब अपन बोलते हैं या अपन बोलते हैं कि ये एरिया में, सो रेवेन्यू एरिया में इशू, देन क्वालिफाइड. डिस्क्लेमर हम डिस्क्लेम कर देते हैं. डिस्क्लेम मीन्स we don't want to give opinion. When we will do that? In the second scenario, when we say unable to obtain the sufficient appropriate audit evidence. ठीक है. एंड थर्ड इज एडवर्स ओपिनियन. एडवर्स ओपिनियन हमको डेटा मिलता है, हम कंक्लूजन भी करते हैं, बट वो कंक्लूजन में निकलता है कि इम्पैक्ट परवेसिव है एंड मटेरियल है. ठीक है, समझ में आया. सो form of opinion, unmodified and modified. Lot of time whenever I discuss with someone or some new articles or somebody, I get to know are qualified opinion.
एक तो क्वालिफाइड बोलते हैं, नहीं तो नॉट क्वालिफाइड बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ध्यान में रखना है अनमॉडिफाइड है और मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड में देयर आर 3 टाइप्स, कीप इन माइंड ऑलवेज, एंड डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द मैटर, डिपेंड्स ऑन द परवेसिवनेस और मटलनेस ऑफ दैट मैटर, यू नीड टू डिसाइड विच ओपिनियन। और ये डिस्क्लेमर कब करोगे, जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। सो आपने बोला रेवेन्यू में मुझे सैंपल चाहिए, सब सैंपल ही नहीं मिले क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर ले गए, या सब देयर वाज अ फायर एंड एवरीथिंग ऑल रिकॉर्ड्स हैव बीन बर्न्ड आउट और सम पर्टिकुलर रिकॉर्ड, तो आप उस पर ऑडिट कैसे कर पाओगे, आप ओपिनियन कैसे, क्योंकि आपने चेक ही नहीं किया। सो आप कुछ चेक ही नहीं कर पाओगे तो आप डिस्क्लेमर देंगे। चेक किया और आप ओपिनियन, आपका कंक्लूजन है कि फ्री मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री नहीं है फिनेंशियल स्टेटमेंट, देन क्वालिफाइड ओपिनियन। फिनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट से नहीं है एंड इम्पैक्ट इज परमिसिव, देन एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, द नेक्स्ट वन। सो हमने देखा था सम अदर मैटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉट ऑफ टाइम वी मेक कंफ्यूजन स्टिल। सो जब भी आप ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो आपको ये ध्यान में रखना है कि देर आर सर्टेन टाइम्स यू नीड टू इशू एम्फोसिस मैटर पैराग्राफ एंड सम टाइम आपको इशू करना है अदर मैटर पैराग्राफ। सो एम्फोसिस मैटर पैराग्राफ क्या है? एम्फोसिस मैटर पैराग्राफ है कि आपको कुछ मैटर पे एम्फोसिस देना है, कुछ फिनेंशियल में कुछ डिस्क्लोजर है या कुछ नंबर है या कुछ इवेंट है या कुछ इशू है या एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द ईयर एंड यू नीड टू हाईलाइट दैट एंड यू नीड टू हाईलाइट टू द शेयर होल्डर्स। सो एम्फोसिस मैटर क्या है? आपको कोई मैटर पे एम्फोसिस देना है, बट इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है एम्फोसिस मैटर? सो इट इज इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट एंड इट इज सच इंपॉर्टेंस दैट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर्स ऑफ फिनेंशियल। एंड आपको ये ध्यान में रखना है, आप एम्फोसिस किस पे करोगे? कोई भी मैटर जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में है, तो एम्फोसिस मैटर में आपको ध्यान में रखना है कि देयर शुड बी सम नोट्स टू अकाउंट वेयर यू रेफर। सो जनरली हम बोलते हैं कि रेफर नोट दिस इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट फॉर XYZ रीजन, या सपोज कोई आग लग गई और क्लाइंट का काफी बड़ा नुकसान हो गया और कंपनी ने वो अकाउंट भी कर लिया, बट उसकी वजह से आपका फिनेंशियल जो है इस बार का वो काफी बड़ा लॉस दिखा रहा है, तो आप और मैनेजमेंट ने नोट दिए फिनेंशियल स्टेटमेंट में एंड आपको लगता है वो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू नो फिनेंशियल्स आर वेरी बिग and lot of time you think it is very important for readers to read that note and understand that, and it has an impact on the financial overall and it is an important note। तो आप क्या करोगे, आपके ऑडिट रिपोर्ट में डाल दोगे, एम्फोसिस मैटर डालोगे और वो नोट का रेफरेंस दोगे और आप बोलोगे कि मेरा ओपिनियन जो है मॉडिफाइड नहीं है। सो ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मेंशन करना है आपका ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। सो हमने फॉर्म्स ऑफ ओपिनियन में देखा अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड। मॉडिफाइड में 3 है, उसमें एम्फोसिस मैटर नहीं था। एम्फोसिस मैटर मीन्स नॉट अ मॉडिफिकेशन टू रिपोर्ट, इट्स नॉट अ सब्सटीट्यूशन टू मॉडिफिकेशन टू रिपोर्ट। तो आपको कोई इशू मिला है और मटेरियल है या परवेजिव है तो आपको मॉडिफाइड ओपिनियन में जाना है। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ मैटर है जिसमें फिनेंशियल्स आर प्रिपेयर्ड प्रॉपरली, there is no issues in your conclusion, but it is important for the users of it. That's why you have mentioned it as an emphasis. Next is other matter graph. So आप time आप other matter भी देखेंगे। other matter और emphasis matter में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि emphasis matter का रेफरेंस फिनेंशियल्स में रहता है, so it is linked to the financial statement, but other matter में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। other matter is some matter which is important for the users of financial statement और रिलीवेंट फॉर द, कि उनको पता होना चाहिए। सो जैसे कुछ अदर मैटर पैराग्राफ में हम कैसे डालते हैं, जैसे लास्ट टाइम हम ऑडिटर नहीं थे और द ऑडिटर वाज डिफरेंट, सो इट कम्स टू अदर मैटर। या हम कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे हैं और उसमें हमने क्या किया, हमने रिलाय किया, सब्सिडरी के ऑडिटर्स दूसरे हैं और हमने उनके काम पे रिलाय किया, तो इट गोज टू अदर मैटर। तो फिनेंशियल और उसका लिंक नहीं है, बट यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग और उनके रिलेवेंस के लिए हम मेंशन करते हैं अदर मैटर। तो अदर मैटर में हम जनरली मेंशन करते हैं कि भी ऑडिटर दूसरा था या सब्सिडरी के ऑडिटर्स दूसरे या हमने ये ऑडिट नहीं किया। सो ऐसा कुछ मैटर जो फिनेंशियल से लिंक नहीं है, सो other than those presented and disclosed in the financial statement, ठीक है, but it is relevant, ठीक है। सो आपको ये ध्यान में रखना है, सो रिलेवेंट है बट अदर मैटर है, सो ये अदर मैटर पैराग्राफ है। तो एम्फोसिस मैटर और अदर मैटर आपको ये ध्यान में रखना है कि उनका प्लेसमेंट कहाँ है। सो जनरली ऑडिटर्स ओपिनियन और अपना फॉर्म बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद ये मैटर पैराग्राफ आते हैं। समटाइम्स देयर इज अ चेंज आल्सो। सो आपको सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज याद में रखनी है इसमें कि कब एम्फोसिस मैटर यूज करना है, एंड सेकेंड आपको ये ध्यान में रखना है अदर मैटर कब यूज करना है,
थर्ड, उनका प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको प्लेसमेंट ऑडिट रिपोर्ट, सो आपने फॉर्मेट दिखा, उसमें आपने कोई एम्फोसिस मैटर पैराग्राफ दिखा था क्या, अदर मैटर पैराग्राफ, बिकॉज दोज आर नॉट अ कंपल्सरी पैराग्राफ, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट इन अ स्ट्रक्चर, बट स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्स कि वो पैराग्राफ कब और कहाँ यूज करना है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो, सो लेट्स इंक्रीज योर कंफ्यूजन मोर। एक पैराग्राफ है विच इज कॉल्ड अदर इंफॉर्मेशन, सो एसए 720 विच इज रिसेंटली मॉडिफाइड और गिवन, सो विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ। अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ क्या है, तो हम बोर्ड, सो हमने देखा होगा बोर्ड रिपोर्ट या आपने एनुअल रिपोर्ट देखा होगा कोई इसका, उसमें काफी इंफॉर्मेशन रहती है कि जैसे प्लान रहते हैं उनके फ्यूचर के, उनका प्रोस्पेक्टिव रहता है, अदर काफी इंफॉर्मेशन रहती है। तो अब ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनता है कि आप जब वो अदर इंफॉर्मेशन देख रहे हो, जैसे एनुअल रिपोर्ट या आप जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट, आपको ये इंश्योर करना है कि उसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं है। तो आपने देखा रेवेन्यू आपने टेस्ट किया, आपके हिसाब से रेवेन्यू का नंबर 100 है, ऐसा ना हो कि बोर्ड रिपोर्ट में नंबर अलग है या एनुअल रिपोर्ट में नंबर अलग है, या आपको कोई अदर इंफॉर्मेशन मिली है विच इज नॉट कंसिस्टेंट इन द दिस रिपोर्ट लाइक बोर्ड रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट, ऐसा है तो आपको ये अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में आपको वो देना है कि देयर इज ए इनकंसिस्टेंसी, और नहीं है तो भी आपको देना है कि देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, सो ध्यान में रखना, एम्फोसिस मैटर, अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ इज डिफरेंट एंड एसएस 720 इज देयर which talks about other information, other concepts. So क्या है अदर कंसेप्ट, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, करस्पॉन्डिंग फिगर्स vis-a-vis कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपने काफी बार ये सुना होगा करस्पॉन्डिंग नंबर, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। सो एसएस 710 पे काफी इसमें इंफॉर्मेशन, इसमें क्लैरिटी देता है। तो सबसे आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि हम जब कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे अभी मार्च 2020 का फाइनेंशियल ईयर एंड चल रहा है और आप मार्च 2019 के नंबर दिख रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। सो उसका रिक्वायरमेंट क्या है, एज अ ऑडिटर डू वी नीड टू टेस्ट और व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हेन वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दैट एंड वेदर इट कम्स इन आवर ऑडिट रिपोर्ट। सो फॉर करस्पॉन्डिंग फिगर ओनली रिपोर्टिंग ऑन करंट ईयर नंबर्स। तो हम जब करस्पॉन्डिंग फिगर्स बोलते हैं उसको, सो हम सिर्फ करंट ईयर के नंबर्स पे रिपोर्ट कर रहे हैं, हम पिछले साल के नंबर्स पे रिपोर्टिंग नहीं करते। तो आप ऑडिट रिपोर्ट में देखोगे हम क्या मेंशन करते हैं, बैलेंस शीट। सो ओपिनियन पैराग्राफ आप देखोगे तो उसमें हम बोलते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस ये फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2020। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम करंट ईयर पे ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन पे रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है जब आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, आप जनरली आप ये रिपोर्ट देखोगे। फॉर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो काफी बार जैसे आपने देखा होगा आईपीओज आते हैं या कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए फाइनेंशियल बनते हैं, दैट टाइम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी ऑडिटर रिपोर्ट करता है। सो तब आपको रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। तो आपको ध्यान में रखता है जब आप करस्पॉन्डिंग फिगर बोलते हो उसको, तब आपका रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हो तब आपका रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। दैट्स द सिंपल थिंग यू नीड टू कीप अंडरस्टैंड। जब भी आप ये ध्यान में रखोगे एसए 710, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका कंपैरेटिव जो इन्फॉर्मेशन है या जो पिछले साल का कॉलम है या पिछले साल की इन्फॉर्मेशन है, कब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और कब नहीं है। जब आप कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हो तब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, करस्पॉन्डिंग फिगर्स बोलते हो तब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एज ऑडिटर। ठीक है, ये अपन ने डिस्कस किया वो, और उसमें दो अप्रोचेस, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कब है और कब नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, सो ये दिस इज द पैराग्राफ, दिस इज द एग्जांपल यू कैन सी। सो इसमें आप देख रहे हो कि विच कंप्राइज द बैलेंस शीट 31 मार्च 2019। सो मैंने जैसे एग्जांपल दिया, ये क्लियरली स्पेसिफिकली बोलता है कि वो साल का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी। फिर आप देखोगे ये अदर रिपोर्ट, जहाँ पे आपको दिखेगा कि आप कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में भी बात। सो वी आर ऑडिटेड अ कंपनी व्हिच कंप्राइज द बैलेंस शीट एज दिस एंड द स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पे आप दोनों साल के बारे में रेफरेंस करें। सो तब आप बोलोगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आप रिपोर्ट कर रहे हो, नॉट करस्पॉन्डिंग फिगर्स। सो आपका जब फाइनेंशियल में जनरली आते हैं वो करस्पॉन्डिंग फिगर्स रहते हैं, उस पर आप रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, लास्ट अपने इसमें की ऑडिट मैटर। सो आपने देखा होगा
आपने सुना होगा की ऑडिट मैटर काफी बार. दिस इज अ वेरी न्यू concept, but very important, and it increases the auditor's responsibilities, but it gives a lot of गुड इन्फॉर्मेशन फॉर द यूजर्स ऑफ फिनेंशियल. सो ये क्या बोलता है, आप डेफिनेशन पढ़ोगे की ऑडिट मैटर का, तो ये बोलता है की ऑडिट मैटर्स आर डिफाइंड एज दोज मैटर्स दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वेयर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड. Key audit matters are selected from matters communicated with those charged with governance. So first आपको ये ध्यान में रखना है कि ये की ऑडिट मैटर सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में ऑडिट रिपोर्ट में आएगा. ठीक है. देन ये क्या मैटर्स है, तो आप जब ऑडिट कमिटी है या आप जब मैनेजमेंट है, आप उनसे जब कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आप बोलते हो कि मैंने ऑडिट ऐसे ऐसे किया, मुझे ये पॉइंट्स मिले या मेरे को ये सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले, हम वो डिस्कशन मैनेजमेंट के साथ करते हैं, उनको एक इश्यू करते हैं लेटर, काफ़ी बार ये प्रेजेंटेशन होता है. सो उसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं विद दोस चार्ज विद गवर्नेंस व्हिच इज ऑडिट कमिटी, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो दोस्त उनके साथ हम कम्युनिकेशन करें. वो कम्युनिकेशन में जो मैटर है, वो मैटर में से आपको जो सिग्निफिकेंट मैटर है विच आर मोस्ट सिग्निफिकेंस, वो आपको ऑडिट रिपोर्ट में डालना है. सो सपोज आपको लगा कि इस बार इंपेयरमेंट का प्रोविजन है या इन्वेंटरी का वैल्यूएशन है या फायर की वजह से आग लगी, तो आपने ऐसे अलग अलग मैटर डिस्कस किया मैनेजमेंट के साथ और आपने कम्युनिकेशन किया उनको कि भाई हमने ये कम्युनिकेशन किया, आपने ये जवाब दिया, हमने ऐसे कंक्लूड किया, हमने ये काम किया. सो देयर इज अ deliberation discussions happen और communication happen with the charge with government. उसमें आपको देखना है कि कौन से मोस्ट सिग्निफिकेंस है. सो ये मोस्ट सिग्निफिकेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट सिग्निफिकेंस आपको आइडेंटिफाई करना है जो आपका एफर्ट ज़्यादा ले रहे हैं, जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व ज़्यादा है या वो यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है. सो देर आर क्राइटेरियाज गिवन. सो देर इज अ फनल अप्रोच दे आर सेइंग कि पहले आपको क्या करना है कि मैनेजमेंट को कौन सा कम्युनिकेट किया, उसके बाद आपको देखना है उसमें फिल्टरिंग आउट करके मोस्ट सिग्निफिकेंस क्या है और वो रिपोर्ट करना है. रिपोर्ट करना है मीन्स व्हाट यू हैव टू डू. तो आपको वो की ऑडिट मैटर बोलना है कि ये मैटर क्या है और आपका ऑडिट प्रोसीजर्स और आपका कंक्लूजन कैसे ड्रॉ हो. कंक्लूजन इज क्लीन कंक्लूजन मीन्स मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है. आपको सब जवाब मिले, आप सेटिस्फाइड हुए, बट आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्सिटी, जजमेंट्स, एस्टिमेट्स, सो दिस थिंग्स आर गुड इन दैट, या आपको एफर्ट ज्यादा लेने पड़े या नंबर ज्यादा है, सो वेरियस जजमेंट, बट आपको जजमेंट इनका आपने कंक्लूजन किया सब अच्छा है, बट वो की ऑडिट मैटर था, आपके ऑडिट करते समय जो की था वो आपको याद देना है. ठीक है. बट इट इज नॉट सब्सटीट्यूट टू मॉडिफाइड ओपिनियन. तो आपको ध्यान में रखना है एम्फोसिस मैटर, अदर मैटर पैराग्राफ, की ऑडिट मैटर, अदर इंफॉर्मेशन, दीज आर नॉट सब्सटीट्यूट्स टू मॉडिफाइड ओपिनियन. ठीक है. आपको जब इंफॉर्मेशन नहीं मिले और आपका कंक्लूजन है कि मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं मिले या मटेरियल इशू है या परवेजिव इंपैक्ट है, आपको मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना है. दीज आर नॉट सब्सटीट्यूट. ठीक है. ओके, आई होप यू एंजॉय report. Generally exam perspective से आप देखोगे the students, these are the commonly general topics covered. The difference between the various concepts which we have seen in Infosys matter, key audit matter or modified opinion, qualified opinion. Lot of time people get confused. Key audit matter भी same लग रहा है, modified opinion. This type of questions, components of audit report, जैसे हमने देखा responsibilities of financial stability, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, या अलग अलग कंपोनेंट क्या, एड्रेस ही क्या आएगा, प्लेस कौन सा डालना चाहिए, डेट कौन सी डालनी चाहिए, और या ऑडिटर्स ओपिनियन पैराग्राफ में क्या आएगा. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. सो ये सभी कंसेप्ट पूछे जाते हैं. ठीक है. From this, do comments if you have any questions. I will be happy to revert to you in the comment box. This is my LinkedIn link if you want to join me. Thank you very much for watching this video. See you in the next video.